Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and staying safe at your home. So in our today class we studied about the uniform circular motion. In the previous class we derived some equation of motion. So in our today class we studied about the uniform circular motion, that what is the concept of uniform circular motion. Before we go to the uniform circular motion, we studied about some terms of the velocity and the acceleration. So what is your acceleration? The change in velocity with respect to time is known as your acceleration. So how the velocity can change? Okay, आपके velocity change कैसे होते हैं? By which term the velocity can be changed? So velocity किस किस term से change होते हैं? First, the first point is when the change in magnitude. Okay, let us consider one example that we move in a straight line. Okay, we move in a straight path with different speed. Okay, with different magnitude. In that case, we say that the velocity is changed. That means when we move in a straight path, we move from like A point to B point with a velocity of 20 meter per second, then B point to C point with a velocity of 40 meter per second. In that case, we said that the velocity is changed. Okay, then the next point is change in direction. Okay, when the direction of the motion is changed, in that case also we said that the velocity is changed. Because we know that velocity is a vector quantity. Okay, velocity is a vector quantity which depends upon the magnitude and its direction. If the magnitude is changed, that means velocity is also changed. If the direction of the motion is changed, then the velocity is also changed. And the third case, if both are changed, that is magnitude and direction. If both are changed, that means also the velocity can be changed. So for change in the velocity, velocity किस किस term से change हो रही है? If your magnitude will change, if your direction of motion will be changed, or if magnitude and direction both will change, in that case your velocity term will change, and also the body is said to be accelerated. When the velocity is changed, then the body is said to be accelerated. Okay, so these are the important terms about the velocity. Next we move to the circular motion. What is circular motion? First we studied about the circular motion, that what is a circular motion. Okay, so here we consider a rectangular track. Okay, and a person moves in a, or a person runs in a rectangular track. This one is rectangular track which is A, B, C, D. Suppose a person start running from A point. Okay, start running from A point, then he covers the distance, then ends at the same point. That means complete one revolution. Okay, if a person runs in a rectangular track with a constant speed, okay, if a person runs in a rectangular track with a constant speed, in that case the person change its direction. Okay, in that case the person change its direction. That means first it starts running from A point. Okay, then it changes its direction at B point. Okay, B point में वो turn लेगा, that means it changes its direction, but with constant speed. वो speed उसका constant रहेगा, but यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपनी direction को change कर रहा है. Then after B point it changes direction at C, then after D, then A के बाद यहाँ पर आ जाएगा. That means in a rectangular track it changes its direction 4 times. That means it changes its velocity 4 times. वो अपने velocity को 4 times change कर रहा है.
यहाँ पर कितने टाइम्स वो अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है? 4 टाइम्स. ओके, इफ वी कंसिडर a hexagonal path, A B C D E F, then in the hexagonal path there are 6 corners. Okay, in the hexagonal path there are 6 corners. That means the person run in a hexagonal track change its direction or change its velocity 6 times. If we consider an octagon path, that means if we consider an octagon path, that means here 8 corners are there. That means the person run in a octagon track change its direction or change its velocity 8 times. Okay, so the number of turns or the number of corners or the number of points inside the track decide that how many times the person changes direction. If we consider a circle, then in this case, in the circle, here indefinite points of turns are there. ओके, एक सर्कल के केस में क्या आता है, यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ पॉइंट्स आएंगे. मे बी यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे आपके सर्कल में. सो हियर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ टर्न्स आर देयर. Infinite number of points of turns are there. That means infinite number of change in velocity. यहाँ पर infinite बार अगर हम लोग बोलेंगे कि velocity भी change हो रहा है. So in that case also the velocity is changed. Okay. In case of the circle, the velocity is changed. So the motion in the circular path. What is circular path? The motion in a circle, which is known as circular motion. Okay, the motion in a circular path change its direction anytime, every time. Okay, अपने direction को वो हमेशा change करते रहता है. अपने direction को अगर हमेशा वो change करते रहेगा, that means अपने velocity को अगर वो हमेशा change करते रहेगा, that is the meaning that the motion in a circular path is known as accelerated motion. कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में आते हैं that is the motion in a circular path is an accelerated motion. That the answer is yes. So why? Because when the body moves in a circular path, it changes direction every time. Okay, it changes direction every time, so that velocity is also changed, and this motion is known as accelerated motion. So when we say that the circular motion is uniform, okay, when we say that the circular motion is uniform, when the body moves in a circular path with a uniform speed. Okay, when the body moves in a circular path with a uniform speed is known as uniform circular motion. जब हमारा एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में यहाँ पर डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, हम लोग कैसे पता लगाएं कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन केस ऑफ द सर्कुलर पाथ, हाउ वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन इन केस ऑफ द सर्कुलर पाथ. हम लोग हमेशा जानते हैं एक स्फीयर के केस में या एक सर्कल के केस में आपका जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन इज ऑलवेज ए टेंजेंट. Okay, the direction is always a tangent at the point. If we want to determine, this one is the center point. If you want to determine that the
direction at this point. That means we draw a tangent at the surface. Tangent मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एक स्फीयर का टेंजेंट क्या होता है? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि उस सरफेस को टच करते हुए जाएगा. अगर इस पॉइंट में निकालना है हमें डायरेक्शन, दैट मीन्स ए टेंजेंट ड्रॉ एट दिस पॉइंट. इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, अगर हमारा डायरेक्शन ऐसे है, देन इन दैट केस यू टेंजेंट इट एट दिस पॉइंट. इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन अगर इस पॉइंट में निकालना है, दैट मीन्स वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट. अगर इस पॉइंट में डायरेक्शन आपको पता लगाना है, अगर हमारा मोशन ऐसा हो, ठीक है, देन वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट. सो वी नो द डायरेक्शन. Okay, we know the direction in case of the circular path by draw a tangent, and always velocity is in the tangent direction. Okay, जब भी आपका एक बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा tangent के डायरेक्शन में ही होता है. तो हम लोग ये चीज कैसे पता लगाए कि हमेशा जो वेलोसिटी होता है वो आपके tangent के डायरेक्शन में ही होता है. जो हमेशा आपके वेलोसिटी होते हैं वो हमेशा आपके टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होते हैं. तो ये हम लोग कैसे पता लगाए? बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है. जैसे कि हम लोग एक क्या करते हैं, एक स्टोन को टाई कर देते हैं थ्रेड से. ओके, वी टाई ए स्टोन विथ ए थ्रेड. ओके, एक थ्रेड से उसको टाई करने के बाद उसको ऐसे घुमाते हैं. ओके, सर्कुलर पाथ में उसको ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग. उसको ऐसे घुमाते वक्त वो कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ कर रहा होगा. दिस वन इज द सेंटर. ओके, ये हमारा सेंटर है जो सेंटर से हम लोग पकड़े हुए हैं. ओके, वो सर्कल में घुमा रहे हैं, उसको एक स्टोन को टाइट करके घुमा रहे हैं. सो डायरेक्शन इज ऑलवेज शोड बाय द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी भी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में ही रहती है. तो आप देखो कि इस पॉइंट में अगर हम लोग बोले कि इस पॉइंट में आपका जो स्टोन है उसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट. ओके, अब हम लोग ये कैसे पता लगाए कि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, टेंजेंट के ही डायरेक्शन में है. अब मान लो कि हम लोग ऐसे घुमाते वक्त, ठीक है, हम लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, थ्रेड को घुमा रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आया, वी रिलीज द थ्रेड. हम लोग थ्रेड को छोड़ दिए, वी रिलीज द थ्रेड. सपोज वी रिलीज द थ्रेड एट दैट पॉइंट. ओके, इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये हमारा सेंटर से एक पॉइंट लेते हैं. ओके, इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, दिस वन इज द थ्रेड. ओके, इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट में हम लोग थ्रेड को छोड़ देते हैं. ऐसे घुमाते रहते हैं, अचानक से इस पॉइंट में हम लोग थ्रेड को छोड़ देते हैं. ये है आपका स्टोन, ठीक है, ये है आपका स्टोन का पोजीशन. सो थ्रेड को अगर हम लोग इस पॉइंट पर छोड़ देंगे, जब स्टोन आपकी इस पॉइंट पर हो, तो वहां पर आपका स्टोन का डायरेक्शन किधर होगा? वो रिलीज करने के बाद वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इट फ्लाइज ऑफ एट दिस डायरेक्शन. ओके, वो किस डायरेक्शन में चले जाएगा? आपके टेंजेंट के डायरेक्शन में चले जाएगा. ओके, अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, दिस वन इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, सो ये आपके किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ के डायरेक्शन में. अगर हम लोग एक स्टोन को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, देन अगर हम लोग का वेलोसिटी ऐसे है, अगर हम लोग उस स्टोन को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, दैट मीन्स इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट. अगर इस पॉइंट में करते हैं, देन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ. ओके, सो द वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट. ओके, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सो इस चीज का एक समरी के हिसाब से इसको लिख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े आज की क्लास में. उससे पहले और एक चीज भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं. If we consider a circular path, okay, if we consider a circular path, let us consider this one is the center
and this one is the radius. Okay, in case of the uniform circular motion, the speed is also here constant and the velocity term is changed. So what is the time period of the object? Okay, what is the time period of an object for the one revolution? एक रिवोल्यूशन के लिए आपका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू, टाइम पीरियड उसका कितना होगा? वो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया है दैट मीन्स वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा. ओके, इस डिस्टेंस को कवर करेगा विथ सम स्पीड. ओके, इस डिस्टेंस को कवर करेगा विथ सम स्पीड. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ द circle, that is 2 pi r. Okay, 2 pi r with some speed which is known as v. Okay, this one is the time period for one revolution. If some object is complete one revolution, then what will be the time period for this object? That is 2 pi r by v. हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं, that is हम लोग पढ़े थे, दैट इज वेलोसिटी इज डिस्टेंस और स्पीड. स्पीड के टर्म में यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग स्पीड का केस लिए हैं. स्पीड इज योर डिस्टेंस बाय टाइम. सो व्हाट विल बी द टाइम? दैट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ पर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? दैट इज 2 pi r एंड द स्पीड. दिस इज द टाइम पीरियड फॉर an object when it moves in a circular path. So इसकी कंक्लूजन टर्म को लिख देते हैं कि हम लोग आज की क्लास में फाइनली क्या क्या पढ़े. Then about the uniform circular motion, the first point is when a body moves in a circle, it is called as circular motion. Then the second point, when a body moves along a circular path, then its direction of motion, velocity keeps changing continuously. Okay, then third point about the circular motion, that when a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is said to be uniform circular motion. Then the fourth point, since the velocity changes due to continuous change in direction, so that the motion along a circular path is said to be an accelerated motion. Then the next point, velocity direction is always in the direction of the tangent to that spherical surface or to the circular surface. Sixth number, time for the complete revolution, which is known as the time period, is 2 pi r by v. R is the radius and pi is obviously 22 by 7 point हम लोग consider करते हैं. v is the speed. Okay. Then seventh point, that is force which is needed to make an object travel in a circular path. We know that हम लोग कोई भी जगह मूव कर रहे हैं, अगर एक सर्कल में भी मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमें एक फोर्स चाहिए. अगर हम लोग एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इस सर्कल का एक सेंटर होता है. ओके, इस सर्कल का एक सेंटर होता है, वही सेंटर को कंसीडर करके हम लोग इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करते रहते हैं. ठीक है, सो जो जिस फोर्स से हम लोग इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. Okay, the force which is needed to make an object travel in a circular path is called as centripetal force. यही centripetal force की वजह से आपके different objects जो हैं circular path में move करते हैं, like when the earth moves around the sun because of the centripetal force and also because of the gravitational force. And the next force is the centripetal force. The satellite moves around the earth or the moon moves around the earth. These are the examples of the uniform circular motion. Okay, so these are the all concepts about the uniform circular motion. अगर कभी आपका क्वेश्चन में आता है कि is your linear motion is accelerated motion, क्या आपका linear motion भी accelerated motion हो सकता है? So the answer is no. Okay, linear motion is that motion when we move in a straight line. हम लोग जब एक straight line में move कर रहे हैं, उसी चीज को हम लोग linear motion बोलते हैं.
सो लीनियर मोशन के केस में हमारा डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, बिकॉज एक स्ट्रेट पाथ जब हम लोग कवर कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग कहीं भी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं. सो लीनियर मोशन इज नॉट ट्रीटेड एज द एक्सेलरेटेड मोशन. ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ट्रीटेड एज द accelerated motion. So these are all concepts about the uniform circular motion. Next we do some numericals based on the uniform circular motion and the previous motion equation. So here is one question, that is, a particle is moving in a circular path of radius 7 meter with a constant speed. It completes one revolution in 4 seconds. Find the speed of the particle. So here given that radius is 7 meter and time is 4 seconds. So we have to find out the speed. We know that speed is equal to distance by time. So what is the distance in case of the circular path? The distance is 2 pi r. 2 pi r divided by your time. Okay, 2 pi r by t, which is 2 into 22 by 7 into r is 7 divided by time is 4. ओके, टाइम हो गया 4. यहाँ पर 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया. 2 2 जब 4, 2 में अगर हो गए तो ये हो जाएगा 11. सो दिस वन इज 11 मीटर पर सेकेंड. सो द स्पीड, ओके, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 11 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वी मूव सम न्यूमेरिकल्स अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, इस टाइप के ही आपके क्वेश्चंस आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. जैसे कि आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा, टाइम फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा, ये स्पीड या रेडियस, उस टाइप के कुछ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने के लिए दिए रहेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. ओके, फिर हम लोग जाते हैं कुछ हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं. सो हियर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find its speed 5 seconds after it was dropped. So we have to find the speed. Here given that the time is 5 seconds after it was dropped and the uniform acceleration which is 10 meter per second square. That means एक बॉडी को क्लिफ से ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉडी को ऐसे क्लिफ से ड्रॉप किया जा रहा है with an acceleration of 10 meter per second square. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है. दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. ओब्वियसली एक बॉडी को हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंटली पकड़ के रख रहे हैं, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ? 0. ओके, फिर उसको हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं. ड्रॉप करने के बाद वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find its speed 5 seconds after it was dropped. मतलब वो स्टोन, वो पार्टिकल, जो वो बॉडी है, वो ड्रॉप होने के बाद 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा, वो वही चीज हमें पूछ रहा है. What will be the speed? Okay, 5 seconds after it was dropped. The timing यहाँ पर दिया गया है, that is 5 seconds. ओके, सो हम लोग को 5 सेकेंड के बाद उसका स्पीड निकालना है, मतलब हम लोग को क्या निकालना है? द फाइनल वेलोसिटी. तो हम लोग 3 इक्वेशन पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन योर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब देख लो, हम लोग को v फाइंड आउट करना है और हम लोग के पास गिवन क्या क्या है? u a n t. अब ये वाला इक्वेशन देख लो, u a t. ओके, सारे कुछ हमारे पास है, हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या? v. सो वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू u प्लस a t. ओके, सो v इक्वल टू u प्लस a t, u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 10, t equal to 5, so it is 50 meter per second. So the velocity after 5 seconds is the 50 meter per second. The next we move to the second question. The next question is a bullet hits a box. Okay, a bullet, consider a box. Okay, हम लोग एक box consider करते हैं. A bullet hits a box with a velocity of 20 meter per second. ओके, मतलब एक बुलेट
हिट कर रहा है हमारे बॉक्स को, ठीक है, ये अगर हमारा बॉक्स है, बुलेट हिट कर रहा है एक बॉक्स को विथ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड पर यहाँ पर बुलेट हिट कर रहा है बॉक्स को। अभी तक हम लोग को पता नहीं है ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी, हम लोग ये सब कुछ अभी कंसीडर नहीं किए हैं। फर्स्ट हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि एक बुलेट हिट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से बॉक्स को, देन इट पेनिट्रेट्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। वो पेनिट्रेट करके बॉक्स को जाता है अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब मान लो कि इतना तक वो जा रहा है, 6 सेंटीमीटर तक वो डिस्टेंस अपना कवर कर रहा है। देन 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या हो जा रहा है, ओब्वियसली 6 सेंटीमीटर तक ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट मीन्स इट स्टॉप। वो बुलेट 6 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद स्टॉप हो जा रहा है। स्टॉप हो जा रहा है मतलब वहां पर आपका क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर आपका वेलोसिटी स्टॉप हो जा रहा है, दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। Okay, the final velocity is 0 meter per second. So obviously that is initial velocity which is 20 meter per second, and the distance which it cover is 6 centimeter. Obviously इसको भी हम लोग मीटर में अगर कंसीडर करेंगे, 6 सेंटीमीटर इज 6 into 10 to the power -2 मीटर। ओके, हमेशा हर चीजों को एक ही यूनिट में कवर करना। सो S equal to 6 into 10 to the power -2 मीटर, देन U equal to 20 मीटर पर सेकेंड, V equal to 0 मीटर पर सेकेंड। और कुछ यहाँ पर डाटा नहीं दिया गया है। ओके, फाइंड द डिसलेरेशन ऑफ द बुलेट। डिसलेरेशन मतलब ये कोई नॉर्मली रिटार्डेशन के बारे में पूछा है, तो हम लोग को एक्सेलरेशन ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट द मोशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है, S U and V। ओके, S U and V, और कुछ यहाँ पर वैल्यू दिया गया है क्या, the bullet hit the box at the velocity of 20 meter per second and penetrates it up to a distance of 6 centimeter. Find the deceleration of the bullet। मतलब हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, S U V दिया गया है। तो थर्ड इक्वेशन को याद करो, 2as is equal to v square minus u square. So we have to find the a। हमारे पास s का वैल्यू है, b है, u है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। So 2 into acceleration distance is 6 into 10 to the power -2, which is v square minus u square। v is 0 square, that means 0, 0 minus u square। Okay, minus u square, that means square of 20, that is 400 minus 400। so अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं a, that means -400 divided by 2 into 6 into 10 to the power -2। अगर 2 से इसको कैंसिल करते हैं, that means 200, फिर से अगर 2 से कैंसिल करते हैं 100, this one is 3। ओके, अगर इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 into 10 to the power 2 divided by 3। ओके, 100 into 10 to the power 2 divided by 3। ओके, 100 into 10 to the power 2, that means 10,000 divided by 3। so 10,000 डिवाइड, सॉरी यहाँ पर एक माइनस साइन हमारा है, दिस वन इज नेगेटिव साइन। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 3, अगर इसको डिवाइड करोगे देन आएगा 3,333.3। ओके, 0.3, ये हो गया आपका नेगेटिव साइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन इज -3,333.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then let's solve the another question. Question number 3. Here is the next question, that is a train of 100 meter long is moving with a velocity of 72 km per hour. So find the time it takes to cross the bridge which is 2 kilometer long. Okay, so a train of 100 meter, that means the length of the train is 100 meter, is moving with the velocity of 72 km per hour. Obviously we have to convert this into
पर सेकेंड। हम लोग हमेशा हर चीज़ को एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं। एसआई यूनिट दैट मीन्स MKS, हमेशा याद रखना, एसआई यूनिट दैट मीन्स MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर kg, S फॉर सेकेंड। हमेशा ट्राई करना सारे सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो तो, अगर सेम यूनिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिफरेंट यूनिट हो तो हमेशा एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना। एसआई यूनिट मतलब MKS विच इज मीटर, kg एंड सेकेंड। ओके, सो एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड पर, तो सबसे इजी वाला मेथड है कि 72 में आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 5/8। अगर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो तो ठीक है, बट ये आपका शॉर्टकट मेथड है कि 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/8। ये एक मैथमेटिक्स का अपना ही ट्रिक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी आपका हो गया मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज। यहाँ पर टाइम पूछा गया आपको। क्रॉस द ब्रिज विच इज 2 किलोमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स डिस्टेंस इज 2000 मीटर। 2 किलोमीटर दैट इज 2000 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज। मतलब ये कंसिडर कर लो कि ये आपका हो गया एक ब्रिज जिसका डिस्टेंस है 2000 मीटर। ओके, ये एक ब्रिज हो। देन यहाँ पर अगर आपका एक ट्रेन है, मान लो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का ड्राइंग इतना भी कुछ अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट एडजस्ट कर लो। सो हियर इज अ ट्रेन। अगर यहाँ पर एक ट्रेन है, ट्रेन इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा। ओके, अगर हम लोग कोई भी एक आदमी का बात करते हैं, कोई भी हमारे ही बारे में बात करते हैं, अगर हम खुद को कंसीडर करते हैं, हम लोग अगर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे उसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर कहीं एक खड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग चल चल के आएंगे, यहाँ पर आके पहुँचेंगे, दैट मीन्स हम लोग 2000 मीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे। ओके, ट्रेन के केस में क्या होता है, ट्रेन जब अपना पहला वाला जो ये बॉक्स है, ट्रेन में तो बहुत सारे बॉक्सेस रहते हैं ना, बहुत सारे डिब्बे रहते हैं ट्रेन में, जब उसका पहला वाला डिब्बा यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्या वो ब्रिज को क्रॉस कर चुका होगा? नहीं, क्योंकि ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग, क्योंकि ट्रेन का आधा हिस्सा तो यही ब्रिज में ही होगा। ट्रेन का आधा हिस्सा तो ब्रिज में ही होगा ना। ट्रेन का जब पहला वाला बॉक्स यहाँ पर आके पहुँचता है, दैट मीन्स ट्रेन का जो आधा हिस्सा है वो तो ब्रिज के ऊपर ही है, तो ब्रिज को कहाँ पर कम्प्लीटली क्रॉस किया? कम्प्लीटली क्रॉस तो किया ही नहीं है। सो अगर ट्रेन का जो लास्ट वाला बॉक्स है वो जब इस डिस्टेंस के पास पहुँच जाएगा, दैट मीन्स द ट्रेन क्रॉसेस दिस ब्रिज। ओके, हम लोग कब बोलेंगे दैट ट्रेन क्रॉस द ब्रिज? ट्रेन कब क्रॉस किया ब्रिज को, कब बोलेंगे? जब उसका लास्ट वाला बॉक्स क्रॉस कर चुका होगा और यहाँ पर पहुँच चुका होगा। ओके, लास्ट वाला बॉक्स मतलब लास्ट वाला बॉक्स कवर करेगा इस डिस्टेंस को, उसके बाद आएगा, दैट मीन्स वो और क्या कवर कर रहा है? ट्रेन 2000 मीटर के साथ साथ अपने लेंथ को भी कवर कर रहा है। ओके, 2000 मीटर डिस्टेंस के साथ ट्रेन अपने जो 100 मीटर लेंथ है उसका, उस 100 मीटर लेंथ को भी वो कवर करके यहाँ तक पहुँच रहा है, तब हम लोग बोल रहे हैं कि वो ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर रहा है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? मेन कॉन्सेप्ट वही है कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर 2000 मीटर नहीं होगा, डिस्टेंस इज योर 2000 प्लस 100 दैट इज 2100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया आपका 2100 मीटर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि क्या होता है? ट्रेन अपने लेंथ को भी क्रॉस कर रहा है।
So that's why 2000 plus 100 which is 2100 meter. So obviously हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को टाइम फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर टाइम आप लोग देखो नॉर्मल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो विच इज डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस बाय स्पीड. हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. सो डिस्टेंस इक्वल टू 2100 एंड स्पीड इक्वल टू 20. Okay, so 0 0 cancel. 105 seconds. Okay, so the time taken for cross the bridge is 105 seconds. So these are some basic numericals based on the equation of motion and the about the uniform circular motion. You also try of yourself from any kind of book like your NCERT book, any kind of reference book. ओके, नेट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो तभी आपको आइडिया मिलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को बेस करके हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. थैंक यू.